Hello friends, welcome back to the YouTube channel. So in this video, I am covering the lecture number 3 of ISR unit number 6. So the lecture number 1 and 2 is already uploaded on the channel. So the links are given in the description. You can check out the description for the unit number 3 links as well as the unit number 6. Okay, so the remaining part from the unit number 3 will be uploaded till tomorrow evening or tomorrow night. And today I'll cover the unit number 6 of ISR. So now I'll upload the lecture number 3 video, and then lecture number 4 video will be uploaded today if possible till 11:30 p.m. If not, I'll be uploaded till tomorrow morning, that is 11 a.m. or 12 noon. Okay, so now we'll start with the lecture number 3 of ISR unit number 6. So before that, if you are new to the channel, make sure that you subscribe the channel to get notifications every time I upload the videos. Okay, so now we'll move to our PPTs. Okay, so in this video, I'll cover the last two subtopics from your XML retrieval topic, which is evaluation of XML retrieval and text-centric versus data-centric XML retrieval. So first we'll see the evaluation of the XML retrieval. So the initiative for the evaluation of XML retrieval or INEX program is the premier venue for XML retrieval. So whenever you want to evaluate your XML retrieval or to retrieve the XML documents, so for that there is some organization or a program which is called as Initiative for the Evaluation of XML Retrieval, which is also called as INEX. Okay, and then this INEX requires your XML data or XML documents or the elements in the form of content only or content and structure. So we have seen that XML is used to separate the content part and the structure part or the presentation part. Okay, so here if you have only content, then it's called as CO or the content only, and if it contains the content as well as structure, then it is called as content and structure or CAS. Okay, so in this two form, your INEX requires the data of your XML document. So now what is actually the CO? So CO topics are regular keyword queries, just as they are for unstructured information gathering. So it is just your regular keyword queries that you type for whenever you are want to search any information on the web. So CAS or content and structure topics have structured constraints in addition to keywords. So they have some structured structured with them along with your keywords. Okay, so it contains both keywords as well as structure. Then INEX 2002 defined component coverage and topic relevance as orthogonal dimensions of relevance. So now this INEX defined the component coverage and topic relevance as orthogonal dimension of relevance. So anywhere you want to calculate the relevance of your document or XML document or retrieval, then it contains two parameters. First is the component coverage and second one is the topic relevance. So these dimensions are considered by the INEX whenever you want to check the relevance. ओके, सो इवैल्यूएशन ऑफ एक्सएमएल रिट्रीवल के लिए जो है हमारे पास एक प्रोग्राम या फिर आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं इनिशिएटिव फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एक्सएमएल रिट्रीवल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इनेक्स. उसके बाद जो इनेक्स है उसको दो फॉर्म में डेटा आप दे सकते हो. एक जो है फर्स्ट है कंटेंट ओनली, जिसमें आपका सिर्फ कंटेंट रहेगा. सेकंड जिसमें आपका कंटेंट और स्ट्रक्चर दोनों है, तो इसको हम बोलेंगे कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, जिसको हम डिनोट करते हैं CAS से. ठीक है, अब सीओ जो है वो रेगुलर कीवर्ड क्वेरी जो आप डालते हो वो है, और जो CAS टॉपिक से उसमें जो है आपके कीवर्ड्स उसके साथ जो है स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी उसके साथ आते हैं. और फिर इनेक्स जो है वो डिफाइन करता है या फिर ऐसे दो पैरामीटर्स है जिससे वो रेलेवेंस कैलकुलेट करता है, जैसे कि फर्स्ट है कंपोनेंट कवरेज और सेकेंड है टॉपिक रेलेवेंस. ठीक है, तो आप उसके बाद देख लेते कि ये जो कंपोनेंट कवरेज है वो क्या है और उसके अंदर क्या टॉपिक्स है. उसके बाद टॉपिक रेलेवेंस को भी हम सेम ऐसे देखें. ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो है आपका कंपोनेंट कवरेज. द कंपोनेंट कवरेज डायमेंशन इवैल्यूएट्स वेदर द एलिमेंट रिट्रीव्ड इज स्ट्रक्चरली करेक्ट, दैट इज नाइदर टू लो और टू हाई इन द ट्री. It is distinguished between four cases. So basically the component coverage or the dimension, it evaluates whether the retrieved element or the tag of your XML is structurally correct. The structure of that XML document or the element is correct or not, that is judged by your component coverage dimension. And we have seen that all the documents or the tags or the elements are in the form of tree-like structure or the hierarchical structure in your XML document. Okay, so it is distinguished between four cases. So again, to
check whether that is structurally correct or not. So for that we have some 4 cases. So first case is exact coverage, which is denoted by E. Then the information sought, or you can say the information found, is the main topic of the component, and the component is a meaningful unit of information. So whatever information you have found or the element you have retrieved is the main topic of the component, and that component is the meaningful unit of information, or it gives the actual answer to the user's query. Then second is too small. So the information sought is the main topic of the component, but the component is not a meaningful or a self-contained unit of information. So whatever information you have found is the main component of your component, but that component does not gives total information or total answer, or does not answers fully the user's query. So this is nothing but your too small. Okay. Then third is too large. So the information sought is present in the component but is not the main topic. So here the information you are trying to find is present in that particular component or the element or the tag, but is not the main topic of that particular component. So that is nothing but your too large, which is denoted by capital L. Then no coverage means the information sought is not a topic of content. So whatever information you have get is not the main topic, or you can say not the topic of the component. Okay, so which in short, which is irrelevant. So जो कंपोनेंट कवरेज डायमेंशन है वो बेसिकली यूज किया जाता है कि आपका जो भी एलिमेंट रिट्रीव किया है जो या फिर टैग रिट्रीव किया है एक्सएमएल का, वो स्ट्रक्चरली करेक्ट है क्या नहीं, और जो वो चेक करने के लिए जो हमारे पास 4 केसेस है जिसे हम कंसिडर करते हैं. फर्स्ट है एग्जैक्ट कवरेज, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट की है वो मेन टॉपिक है उस कंपोनेंट का, और जो कंपोनेंट है वो मीनिंगफुल कंपोनेंट है या फिर यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन. उसके बाद टू स्मॉल, जो कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने फाइंड की है या फिर रिट्रीव हो चुकी है वो मेन कंपोनेंट तो है, बट जो कंपोनेंट है वो आपको फुल्ली आंसर नहीं दे रहा है या फिर वो पर्टिकुलर यूजर के क्वेरी को 100% जो है आंसर नहीं कर पा रहा. ठीक है, इसलिए जो उसे बोला है टू स्मॉल, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से. टू लार्ज, द इंफॉर्मेशन सॉर्ट इज प्रेजेंट इन योर कंपोनेंट बट इज नॉट द मेन टॉपिक. जो भी इंफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट की है वो आपके कंपोनेंट में है, बट उसके साथ जो है बाकी भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले की जा रही है. That is which is said to be that is not the main topic. So जो भी इंफॉर्मेशन आपने फाइंड की है बस उतना ही मेन नहीं है, बट उसके साथ जो है बाकी भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले की जा रही है. फिर उसके बाद है नो कवरेज, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट की है वो आपके कंपोनेंट में है ही नहीं, या फिर वो जो है मेन कंपोनेंट है ही नहीं, आपके मेन टॉपिक है ही नहीं आपके कंपोनेंट. ठीक है, ये है 4 केसेस जो कंपोनेंट कवरेज डायमेंशंस के अंदर आते हैं. उसके बाद जो है टॉपिक रेलेवेंस को अब हम देखेंगे. सो टॉपिक रेलेवेंस डायमेंशंस में भी जो है 4 लेवल्स है. फर्स्ट लेवल है कि हाईली रेलेवेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे या फिर रेलेवेंस स्कोर कह सकते हो आप, देंगे 3. उसके बाद फेयरली रिलेवेंट, जिसको हम बोलेंगे 2. जो मार्जिनल रेलेवेंट है या फिर आप बोल सकते हो मॉडरेटली रिलेवेंट है, उसको हम देंगे 1. और जो नॉन रिलेवेंट है उसको हम वैल्यू देंगे 0. ठीक. अब जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जज किए जाते हैं इन दोनों डायमेंशन, जैसे कि टॉपिक रेलेवेंस और आपका कवरेज रेशियो, और फिर उस जजमेंट्स को जो है कंबाइन किया जाता है एक डिजिट लेटर कोड के अंदर. क्योंकि आपने देखा होगा हमारे जो टॉपिक रेलेवेंस है वो डिजिट्स है, और जो हमारा कवरेज रेशियो था उसमें कैपिटल लेटर्स हमने यूज किए थे. स्मॉल के लिए एस, लार्ज के लिए एस, नो कवरेज के लिए एन, और जो एग्जैक्ट है उसके लिए ई. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे तो आपको डिजिट लेटर कोड मिलेगा. उसके लिए एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे 2s अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, सो 2 डिनोट कर रहा है कि वो फेयरली रिलेवेंट है, और जो s है वो डिनोट कर रहा है कि वो टू स्मॉल है. वैसे यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूँ 3e को, तो जो मेरा 3 है वो डिनोट कर रहा है वो है मार्जिनली सॉरी हाईली रिलेवेंट, और e जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है कि वो एग्जैक्ट कवरेज है. ठीक है, और ऐसे जो है हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 है टॉपिक रेलेवेंस के अंदर और कवरेज रेशियो के अंदर भी 4 है. तो ईच इंडिविजुअल केस या फिर आइटम जो है वो यहाँ मतलब जो टॉपिक रेलेवेंस का हाईली रिलेवेंट है वो चारों कवरेज रेशियो से साथ जो है कंबाइन हो सकता है. फिर उसके बाद फेयरली रिलेवेंट भी चारों कवरेज रेशियो के साथ कंबाइन करो हो सकता है. मार्जिनल भी वैसे, नॉन रिलेवेंट भी वैसे. ठीक है, तो ऐसे 16 केसेस आएंगे, बट उस 16 केसेस में से जो है सभी केसेस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते. क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंसिडर करोगे, अगर हमने यहाँ पे लिखा नॉन रिलेवेंट और उसको अगर हमने ई लिख दिया मतलब 0e, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि अगर आपका वो डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है ही नहीं तो आपका एग्जैक्ट मैच कैसे होगा, या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे रिलेवेंटली आपको रिट्रीव किए जाए. ठीक है, तो ऐसे कुछ है कि जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे. हम जो है
जो भी आपने डिजिट लेटर कोड फॉर्म किया है उसको जो है अब हम क्वांटिफाइड करेंगे बिटवीन द रेंज ऑफ 0 and 1। सो उसके लिए जो है हम फंक्शन लिखेंगे क्यू और उसके अंदर हम दो पैरामीटर्स या फिर डायमेंशंस पास करेंगे जो कि है रेलेवेंस, उसको डिनोट किया है REL से, और जो कवरेज रेशियो उसको डिनोट किया है मैंने COV से। अब जो 0 से 1 करना है हमें, तो यहाँ पे मैं सबको जो है मैंने 0 से 1 तक जो है डिवाइड कर दिया और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.25 का। ठीक है, अब मैंने क्वांटिफाइड या फिर एस क्यू ऑफ REL कॉमा COV इस फंक्शन की वैल्यू 1 कब रहेगी, जब मेरा रिलेवेंस और कवरेज जो है वो बिलोंग करेगा मेरा 3E के साथ, मतलब वो हाईली रिलेवेंट भी है और एग्जैक्ट भी है, तब मेरी जो इसकी वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1। सिमिलरली बाकी वैल्यू जो है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 0 कब रहेगी, जब मेरा जो नॉन रिलेवेंट है और वो जो है n मतलब नो कवरेज, तब मेरी वैल्यू जो रहेगी इस क्वांटिफाइड फंक्शन की वो रहेगी 0। ठीक है, अब जो है हमें नंबर ऑफ रेलेवेंट कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने की, जो भी आपका रिट्रीव्ड सेट है ए उसमें से रेलेवेंट कंपोनेंट्स, तो उसके लिए जो है हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, रेलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ सी बिलोंग्स टू ए, और फिर उसके बाद जो हम ये क्वांटिफाइड का फंक्शन है वो अप्लाई करेंगे ईच वैल्यू ऑफ सी। सो क्वांटिफाइड रिलेवेंस ऑफ सी कॉमा कवरेज रेशियो ऑफ सी, इससे जो है आपको टोटल नंबर ऑफ योर रेलेवेंट आइटम्स रिट्रीव मिल जाएंगे। ठीक है, ये है बस इवैल्यूएशन ऑफ XML रिट्रीवल। जो हमारे टॉपिक रिलेवेंस के डायमेंशन है उसमें भी जो है 4 लेवल्स है। तो फर्स्ट लेवल है हाईली रिलेवेंट, उसको हमने डिनोट किया है 3 से, फेयरली रिलेवेंट को डिनोट किया है 2 से, मार्जिनली रिलेवेंट या फिर मॉडरेटली रिलेवेंट को हमने डिनोट किया है 1 से, और जो नॉन रिलेवेंट है उसको डिनोट किया है 0 से। तो जो भी कंपोनेंट्स है उसको जज किया जाता है 2 डायमेंशंस जैसे कि कवरेज रेशियो और टॉपिक रिलेवेंस पे, और फिर इन दोनों डायमेंशंस को कंबाइन करके एक डिजिट लेटर कोड को फॉर्म किया जाता है। अब डिजिट लेटर कोड क्यों, क्योंकि हमारे पास आप अगर देखोगे यहाँ पे टॉपिक रिलेवेंस जो है उसको हम डिजिट के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, और जो हमारा कवरेज रेशियो है उसको हम कैपिटल लेटर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स से जो है डिनोट कर रहे हैं, तो इसीलिए डिजिट लेटर कोड यहाँ पे कहा गया। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है 2S। सो यहाँ पे 2 जो डिनोट कर रहा है वो है फेयरली रेलिवेंट, और जो S है वो डिनोट कर रहा है कि वो बहुत स्मॉल। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिट्रीव किया है वो फेयरली रिलेवेंट है, बट उसका जो कवरेज रेशियो वो है 0। सिमिलरली 3 का है, 3 मतलब हाईली रिलेवेंट कंपोनेंट दैट हैज एग्जैक्ट कवरेज। और फिर ये जो भी कॉम्बिनेशन है उसको अगर हम क्वांटिफाइड करेंगे तो जो है हमें वैल्यू जो है 0 से 1 तक क्वांटिफाई करनी है, तो उसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और फिर उसके बाद उनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.25 का, और फिर जो क्वांटिफाइड फंक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं क्यू ऑफ रिलेवेंस कॉमा कवरेज रेशियो। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू जो है 1 कब रहेगी, जब मेरा रिलेवेंस और कवरेज जो है वो बिलोंग करेगा मेरा 3E के साथ, मतलब वो हाईली रिलेवेंट भी रहेगा और एग्जैक्ट भी रहेगा, तब मेरा जो क्वांटिफाइड का फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली बाकी के जो है वो आएंगे जब 0 कब आएगी, जब मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है वो नॉन रिलेवेंट है और वो नॉन कवरेज या फिर नो कवरेज, उस केस में मेरे क्वांटिफाइड फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। फिर उसके बाद अगर आपको कैलकुलेट करना है कि कितने रिलेवेंट कंपोनेंट्स आपने रिट्रीव किए हैं सेट ए से, तो उसके लिए फॉर्मूला है रिलेवेंट आइटम्स रिट्रीव्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ सी बिलोंग्स टू ए, और उसके बाद क्वांटिफाइड फंक्शन आप अप्लाई करोगे अपने ईच कंपोनेंट ऑफ योर सी, दैट इज ईच कंपोनेंट ऑफ सी, राइट। सो रेलेवेंस ऑफ सी कॉमा कवरेज रेशियो ऑफ सी, इसका इंडिविजुअल कैलकुलेट करके आप जो है सम करोगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट है उसके अंदर रिलेवेंट हुए हैं, मतलब रिट्रीव हुए हैं वो। ठीक है, तो ये था आपके इवैल्यूएशन ऑफ एक्सएमएल रिट्रीवल। अब हम देखेंगे हमारा टेक्स्ट सेंट्रिक वर्सेस डेटा सेंट्रिक एक्सएमएल रिट्रीवल। तो इसको मैंने डिफरेंस के फॉर्म में किया है जिससे कि आपको जो है इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और आप इजीली लिख पाओ। ठीक है, सर टेक्स्ट सेंट्रिक एक्सएमएल रिट्रीवल और डेटा सेंट्रिक एक्सएमएल रिट्रीवल। तो यहाँ पे टेक्स्ट सेंट्रिक में जो हमारे पास डेटा होता है वो जो है टेक्स्ट के फॉर्म में रहता है, और जो डेटा सेंट्रिक में फॉर्म डेटा रहता है वो हमारा नॉन टेक्स्ट डेटा के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे इनएग्जैक्ट मैचिंग होती है और यहाँ पे जो एग्जैक्ट मैचिंग की जाती है। फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट्स यहाँ पे रैंक होते हैं या फिर डिस्प्ले होते हैं वो रिलेवेंस रैंक होते हैं, यहाँ पे वैसे कोई रैंकिंग नहीं होता। उसके बाद जो यूज केस यहाँ पे टेक्स्ट सेंट्रिक में होता है वो है वेरिएबल फ्री फॉर्म डेटा विद सम फिक्स एम्बेडेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ फिक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो है वो XML स्कीमा बेस्ड होता है, डेटा विथ लिटिल वेरिएशन एंड लिटिल स्ट्रक्चरल चेंज ओवर टाइम। टाइम के साथ जो है यहाँ पे कुछ लिटिल स्ट्रक्चर में चेंज हो सकते हैं या फिर वेरिएशंस हो सकते हैं XML के स्कीमा में। ठीक है, और फिर उसके बाद टिपिकल डेटा जो आपके पास होता है, यहाँ पे आप कोई भी टेक्निकल आर्टिकल कंसिडर कर सकते हो जिसमें ऑथर हो, डेट हो, टाइम हो या फिर टाइटल हो।
ठीक है। और यहाँ पे जो है एम्प्लॉय रिकॉर्ड विच इंक्लूड्स फ्री फॉर्म डेटा, यहाँ पे एम्प्लॉय रिकॉर्ड को आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्सिंग जो की जाती है वो XML इंडेक्स विद स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर जो है यहाँ पे इंडेक्सिंग की जाती है। यहाँ पे जो है बी ट्री इंडेक्स या फिर XML इंडेक्स विद अनस्ट्रक्चर्ड कंपोनेंट्स, ये जो है यहाँ पे यूज किया जाता है इंडेक्सिंग। उसके बाद स्टोरेज मॉडल जो टेक्स्ट सेंट्रिक एक्सएमएल रिट्रीवल में यूज किया जाता है वो होता है बाइनरी एक्सएमएल, या फिर आप बोल सकते हो CLOB जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है। फिर इसके बाद स्टोरेज मॉडल जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल जो कि एक स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज मॉडल है। उसके बाद अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो यहाँ पे है XHTML वेब पेजेस या फिर IEEE कलेक्शन जो कि आपके रिसर्च पेपर्स होते हैं वो, गूगल बुक्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो है RDF डेटा। तो RDF क्या होता है वो हम जब हम सिमेंटिक वेब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब हम देखेंगे। RSS फी, XMark एंड XML बेंचमार्क्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए बस आप जो है यहाँ से एक या दो एग्जांपल्स जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट से आपके डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट सेंट्रिक वर्सेस डेटा सेंट्रिक एक्सएमएल रिट्रीवल, ये क्वेश्चन आने के जो है चांसेस ज़्यादा है। और जो हमने पहले देखा था वेक्टर स्पेस मॉडल, तो वो भी जो है यहाँ पे आ सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। Now we'll see the difference between text-centric XML retrieval and data-centric XML retrieval. So whatever data you have in your text-centric is basically in the form of text, whereas in data-centric it's in the form of non-text data. Here in text-centric data, inexact matching is there, whereas in data-centric it is exact matching needs to be done. Here whatever results are retrieved, they are relevancy ranked on the basis of their relevance. Here there is no ranking in your data-centric. Then here use case for this data centric text centric is variable freeform data with some fixed embedded structure. So it has some embedded structure, whereas in data centric it is XML schema based data. So there may be some little variations and structural change over your time. Okay, then typical data, here you can have your any technical article with your author, title, date and time fields, and here you can consider the employee record. Then indexing is performed in your text-centric retrieval by using XML index with structured and unstructured components. And here it is used the B-tree index or XML index with unstructured components. Okay, whereas the storage model in your text-centric is binary XML or CLOB, whereas in data-centric it is object relation. Okay, and the examples for text-centric XML retrieval are nothing but your XHTML web pages, your IEEE, or you can say the research paper collections, then Google Books, etc. Whereas in data-centric, we have the examples of RDF data. So what is RDF, that we'll see in your next video or the next lecture when we'll learn about the semantic view. Then RSS fee, XMarks, and XML benchmarks, etc. So this is the topic of your text-centric versus data-centric XML retrieval. So this topic may be asked during your exams. So you can just have this point, just remember this point in the form of the differences, and it is easy. If you write it once or twice, it will be easily recallable. Okay. So, and the next important topic from this XML retrieval is the vector space model for XML retrieval. Okay, so these two questions are there which might be asked or which has more chances to be asked. So prepare them well. And in the next video, that is lecture 4, I'll cover the recommendation system and the semantic weight. So that I will upload it till today at 11:30 p.m. or if not possible till tomorrow 11 a.m. or 12 noon. And if you understand this concept, make sure that you like the video, share it with your friends and subscribe the channel for more such videos. So thanks for watching. We'll see you in the next video.